Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. For you students, I hope you will be fine by the grace of gracious Allah. And I pray for your success in the coming exams. I'm going to start the today's lecture by the formation of the quadratic equation. Let's suppose we have the roots of the quadratic equation as alpha and beta. It will mean that x will be equals to alpha and x will be equals to beta. X is basically the variable that we use for the quadratic equation. It could be y, it could be z, it could be x. X minus alpha will be equals to 0. Reverse step iska. X minus beta will be equals to 0. Both these equations are collectively equals to 0. Then we can write them as the product form as x minus alpha into x minus beta equals to 0. On multiplication, we will get x square minus beta x minus alpha x plus alpha beta equals to 0. By taking x as common here, beta plus alpha beta equals to 0. Now beta plus alpha is showing the sum and the alpha beta is equal to the product. So this one is the quadratic equation that we will use in the exercise number 2.5. Exercise 2.5 is the application of this formula x. Write the quadratic equation having following roots. पहला पार्ट इसका है 1 5. These are basically the roots. Statement is write the quadratic equation having following roots. It means alpha will be equals to 1 and beta will be equals to 5. S will be equals to 1 plus 5 and it will be 6. And the product will be equals to 1 into 5 and it will be 5. By using the quadratic equation x square minus xx plus p equals to 0, we can get the required quadratic equation by help of these sum and the products. S is 6 and the product is 5. So this one is the quadratic equation whose roots are 1 and 5. I mean to say, if we factorize it or if we use the quadratic formula or if we want to solve it by completing square, the answer will come out to be 1 and 5. Okay? Okay. Now I will going to solve the part G. 1 plus iota, 1 minus iota. Process is same as we have done in the previous question. S mean we have to add them. 1 plus iota plus 1 minus iota. Iota will be cancelled because they are additive inverse of each other. So S will be equals to 2. To get the product, we will multiply these. I am going to use the formula a plus b into a minus b, a square minus b square. 1 minus iota square will be replaced by the minus 1. So 1 plus 1 equals to 2. Now the quadratic equation x square minus sx plus p equals to 0. S is 2 and the product is also 2. तो x स्केयर माइनस 2x प्लस 2 हमारे पास क्या है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स 1 प्लस एटा और 1 माइनस एटा हैं.
इट मीन्स अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर इमेजिनरी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एओटा अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इफ अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x plus 6 equals to 0, then form equation whose roots are 2 alpha plus 1 and 2 beta plus 1. ये बेसिकली रूट्स हैं। अब इन रूट्स के लिए हम इक्वेशन एडजस्ट करेंगे। तो बाय यूजिंग द पेरेंट इक्वेशन आई एम राइटिंग its coefficient a is 1 and b is minus 3 and c equals to 6. Now I am going to calculate alpha plus beta, which has a formula minus b over a. Minus into minus 3 by 1 equals to 3. Alpha beta c over a. C has a value 6 by 1 equals to 6. Why do we need to calculate this? Because we want to calculate an equation whose roots are 2 alpha plus 1 and 2 beta plus 1. So in its calculation we need to put the values of alpha plus beta and alpha beta. That's why this parent equation has been given. Now sum is 2 alpha plus 1 plus 2 beta plus 1. 2 alpha plus 2 beta plus 2. 2 will be common. Alpha plus beta will be replaced by 3. 6 plus 2 equals to 8. This one is the sum. Okay. Now the product will be calculated. S has the value 8. Two alpha plus 1 into 2 beta plus 1. 2 2s are 4 alpha beta plus 2 alpha plus 2 beta plus 1. Alpha beta will be replaced by 6 and alpha plus beta will be replaced by 3. Now alpha beta has a value 6, 2 will be common, 24 plus alpha plus beta की वैल्यू हमारे पास थी 3, ये देख लें यहाँ पे। (24 + 6 + 1) इन सब को कैलकुलेट करने से 31 आ जाएगा। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस p इक्वल्स टू 0। s की वैल्यू हमारे पास 8 है और प्रोडक्ट की वैल्यू 31 है, तो ये आ गई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। इफ अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू equals to 0, form equation whose roots are alpha square beta square. We have to form the equation for these roots. By using the parent equation, we will first calculate alpha plus beta and alpha beta. So a will be equals to 1, b equals to p and c will be equals to q. Alpha plus beta equals to minus b over a, minus p by 1 equals to minus p. Product is c over a, q by 1 equals to q. Now sum will be calculated by adding alpha square plus beta square. It has the formula alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. Alpha plus beta will be replaced by minus p
and alpha beta has the value q. So s square equals to p square minus 2q. ओके बेटा, s आ गया. अब हम आएंगे p की तरफ. अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर. अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, वो q है, यहाँ लगा देंगे. सो q स्क्वायर विल बी p. नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इक्वल्स टू 0. s हैज़ द वैल्यू p स्क्वायर माइनस 2q and p has the value q square. ओके, ले बेटा, आपकी एक्सरसाइज 2.5 बाइंड हुई. अब इंशाल्लाह हम सिंथेटिक डिवीजन की तरफ जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, अपना बहुत सारा ध्यान रखें और जो गवर्नमेंट ने SOPs दिए हुए इन पे अमल करें. घर से बाहर निकलते हुए मास्क का इस्तेमाल करें, ठीक है. और जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की गई है, जो गवर्नमेंट ने, आपके पेरेंट्स ने भी आपको बताई होगी, उस पर भी अमल करें. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफ़िज़. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं बच्चों आप? उम्मीद है कि आप सारे खैरियत से होंगे. आज का हमारा लेक्चर सिमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है. Let's suppose we have an ordered pair of alpha beta. अगर हम इसकी मदद से जो है वो एक फार्मूला डिस्कस करें, दैट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा. यानी अगर आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है तो उसका फार्मूला क्या आ गया? अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा. अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर देता हूँ, यानी बीटा मैं पहले लिख देता हूँ, अल्फ़ा बाद में लिख देता हूँ, तो उससे जो फार्मूला बन जाएगा वो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर होगा. लेकिन अगर मैं इसको इस फार्मूले में कन्वर्ट करता हूँ तो बीटा प्लस अल्फ़ा होल स्क्वायर माइनस 2 बीटा अल्फ़ा. यहाँ पे ज़रा गौर से देखें कि जो सम में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या कहती है? वो ये कहती है कि a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए. इसका मतलब है कि ऑर्डर चेंज कर देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ओके, सो द सिमेट्रिक फंक्शंस आर दोज फंक्शंस इन विद रूट्स इन्वॉल्व्ड आर सच दैट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग देम रिमेन्स अनऑल्टर्ड व्हेन द रूट्स आर इंटरचेंज्ड. यानी जब आप रूट्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो किसी किस्म की कोई उनकी वैल्यू में चेंज नहीं आती. तो आज इसी सिमेट्रिक फंक्शन की एप्लीकेशन है. एक्सरसाइज हमारे पास है 2.4. इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0. इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन देन वैल्यूएट. आपको साबित करना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू इसमें क्या आएगी. ठीक है, तो ज़रा सबसे पहले तो हमें इनके कोफिशिएंट्स चाहिए. a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू p एंड c इक्वल्स टू q. तो इसके लिए हम फार्मूला तो यूज़ करेंगे ना, यही वाला ही. तो इसके लिए हमें सम भी चाहिए और प्रोडक्ट भी चाहिए. यानी आपके पास ये एस स्क्वायर माइनस 2p है, एस स्क्वायर माइनस 2p. तो इसके लिए हमें सम भी चाहिए और प्रोडक्ट भी चाहिए. तो सम के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए. माइनस पी बाय 1 इक्वल्स टू माइनस पी.
अब हम शिफ्ट होंगे माइनस C/A की तरफ, यानी अल्फ़ा बीटा की तरफ, Q/1 इक्वल्स टू Q। ये दोनों वैल्यूज़ आपने निकाल ली। अब ये फार्मूला पुट करेंगे और उसमें वैल्यूज़ लगा देंगे। यहीं पे कर लेते हैं। अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हम पुट कर देंगे माइनस p और इसकी जगह पे q, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास q निकला है। तो p स्केयर माइनस 2q ये हमारे पास आ गया अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू। ओके, अब एक और इसमें से एक पार्ट करवाता हूँ आपको मैं। पार्ट नंबर 3, अल्फ़ा और बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। अच्छा बेटा, चूँकि सवाल हम वही वाला कर रहे हैं, उसके आगे पार्ट्स हैं, इसलिए ये दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं कि अल्फ़ा प्लस बीटा ये है और अल्फ़ा बीटा ये है। ये एक ही दफ़ा आप निकाल लें, क्योंकि सारे सवाल उसी एक इक्वेशन की मदद से हो रहे हैं, इसलिए इसको दोबारा ना निकालें, कोई बात नहीं। तो यहीं पे हम इसका सलूशन देंगे। अमाउंट जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में है, एंड व्हेन वी सॉल्व द फ्रैक्शंस वी टेक एलसीएम्स। बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा स्केयर, यहाँ अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा, बीटा से मल्टीप्लाई होके बीटा स्केयर हो जाएगा। अब इसका फार्मूला भी हमने थोड़ी देर पहले इस्तेमाल किया है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा बीटा की जगह हमने उसमें पहले जो वैल्यू निकाली है वो माइनस p और अल्फ़ा बीटा की जगह पे q है। माइनस p का स्केयर माइनस 2q बाय q, तो p स्केयर माइनस 2q बाय q, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, एलसीएम ब्रेक भी कर सकते हैं और यही भी आंसर लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, if alpha beta are the roots of equation, here the equation has been changed, 4x square minus 5x plus 6 equals to 0. If alpha beta are the roots of equation, then find the values of 1 over alpha plus 1 over beta. इन दोनों की जो है वो हमें वैल्यूज़ निकालनी है, यानी ये फ्रैक्शन सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपके पास यहाँ पे ए, बी और सी क्या हैं। ए इक्वल्स टू 4, बी इक्वल्स टू -5 एंड सी इक्वल्स टू 6। अब सम निकालेंगे, माइनस बी ओवर ए, माइनस इंटू -5/4 इक्वल्स टू 5/4। दिस वन इज़ अ सम। अब हम प्रोडक्ट की तरफ आएंगे, वो है सी ओवर ए, 6/4 इक्वल्स टू 3/2। इन सारे सवालों की एक है, पिछली एक्सरसाइज में भी हमने काम किया था कि फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द सम, देन वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट, देन द फॉर्मूला विल बी यूज्ड इन द अमाउंट और वी हैव टू टेक एलसीएम। अब इस अमाउंट में हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा अगर हमने इसका सम निकालना है तो। वन ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा इक्वल्स टू, अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वही बीटा प्लस होगा, क्योंकि ये दोनों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में होल्ड करती है, इसलिए बीटा प्लस अल्फ़ा की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी जाएगी 5/4। मैं इस ओवर की जगह डिवीजन लगा रहा हूँ ताकि डबल ओवर से आप प्रॉब्लम में ना आए। अल्फ़ा बीटा की जगह 3/2 आ जाएगा, तो 5/4 मल्टीप्लाई बाई 2/3, 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, यानी 5/6 आपके पास आंसर आ जाएगा।
ओके बेटा, इन सारे सवालों की टेक्निक सेम है, ठीक है। अब मैं थर्ड में से भी एक पार्ट करवा देता हूँ आपको। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन LX² प्लस MX प्लस N इक्वल्स टू 0। इक्वेशन अभी हमारे पास है LX² प्लस MX प्लस N इक्वल्स टू 0। आगे अमाउंट आपके पास है अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो हमें ABC चाहिए, A इक्वल्स टू L, B इक्वल्स टू M एंड C इक्वल्स टू N। वो मैंने पहले बताया था कि x² का जो कोफिशिएंट होगा वो A कहलाएगा, x का कोफिशिएंट B और आखिरी वाला क्या होगा, C। अब सम निकालें, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस B ओवर A माइनस M बाय L, ये सम निकल आया। अब प्रोडक्ट निकाला जाएगा C ओवर A N बाय L, ओके। अब हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या करना पड़ेगा। पहले तो फ्रैक्शंस थी, हमने एलसीएम ले लिया। अब ये चीज़ क्या आ गई है, इसके बारे में बात करते हैं। अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब, यहाँ देखें कुछ कॉमन है, वो है अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। जब हम यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। क्या इसे अल्फ़ा बीटा को यूँ स्क्वायर फॉर्म में राइट कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसकी भी इकट्ठा कर दिया मैंने। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हम लगा देंगे माइनस M बाय L, ये वाली अमाउंट। अब अल्फ़ा बीटा की जगह पे लगा देंगे N बाय L। N स्क्वायर बाय L स्क्वायर, ये रहेगा माइनस mn स्क्वायर ओवर L क्यूब, ये आपका रिज़ल्ट है, ओके। तो ये बेटा अब एक्सरसाइज आपकी वाइंड हुई। अब नेक्स्ट हम इंशाल्लाह 2.5 पे आएंगे, ओके। अल्लाह हाफ़िज़।